تو 15 اگست یہ ایک خوشی کا دن ہے، اور اس میں ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے پورے ہندوستان میں یہ دن منایا جاتا ہے، چاہے عالم ہو، جاہل ہو، امیر ہو، غریب ہو، بھکاری ہو، بڑا سے بڑا پوسٹ پر رہنے والا انسان ہو، پرائم منسٹر ہو یا ایک راشٹرپتی ہو، سب لوگ یہ دن منایا کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ جہاں بھی یہ پروگرام ہوتا ہے وہاں پہ دیکھتے ہوں گے مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہے، جلیبی کی شکل میں ہو یا دیگر مٹھائی کی شکل میں ہو یا ایک ناشتے کی شکل میں ہو۔ کیا وجہ ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں گے ایک طرح سے لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ بھی ہوتی ہے۔ یہ دن کتنے لوگ جھنڈا لے کر کے خود جو ہے ادھر ادھر چلتے ہیں، کوئی گاڑی پہ لگاتا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ، کوئی تو سائیکل پہ جھنڈا لگاتا ہے۔ کتنے بچے کہتے ہیں ہمیں جھنڈا چاہیے، اور والدین اسے جھنڈا لے کر کے بھی دیتے ہیں۔ کتنے لوگ کہتے ہیں ارے آج تو 15 اگست ہے، گھر میں مٹھائیاں نہیں آئی، گارجن پھر مٹھائی لا کر کے دیتے ہیں۔ کیا ہے اس کے پیچھے؟ 15 اگست مطلب مٹھائیاں کھانا ہوگا؟ جی۔ جھنڈا پھہرانا ہوگا؟ ہاں۔ یہ دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن دیش کی بات ہے۔ جس دیش میں رہتے ہیں، اس دیش کی استھتی، اس دیش کی حالت اچھی نہیں تھی۔ جب دیش کی حالت اچھی نہیں تھی، یعنی دیش کے لوگوں کی حالت اچھی نہیں تھی، یہ دیش کسی نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ باہر سے کچھ لوگ آ کر کے اس دیش کو حاصل کر لیا تھا۔ دیش ہمارا تھا، جس دیش میں ہم آزاد تھے، ہم پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں تھا، ہم جس طرح سے چاہتے تھے رہتے تھے، اس دیش میں ہم غلام بن گئے تھے، کوئی ہم پر راج کر رہا تھا۔ اور جس طرح سے ایک غلام، بلکہ غلام سے بدتر ہماری زندگی ہو گئی تھی، ہم ان کے سامنے منہ کھول نہیں سکتے تھے، جس طرح سے چاہتے تھے ہمیں استعمال کرتے تھے۔ اگر ہم کہتے تھے حضرت صاحب، مالک صاحب، ایسا ہماری تنخواہ دے دیجئے، نوکری چلی جاتی تھی، ہمیں دکھ ہوتا تھا ان کی بات پہ، تو ہمیں توپ کے منہ پہ رکھ کر کے ہمیں اڑا دیتے تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی ہماری۔ مگر اس بات کو ہمارے بزرگوں نے سمجھا، اور سب سے پہلے مسلمانوں نے سمجھا۔ آپ سنے ہوں گے یا سنتے ہوں گے، اور ابھی بھی ہم اپنے دیش میں ڈر بھی رہے ہیں، یہ دیش ہمارا ہے یا نہیں؟ غیر کو ہم دے رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ دیش ہمارا تھا، ہم اس کے مالک تھے، ہماری بادشاہ چل رہی تھی، ہماری حکومت چل رہی تھی۔ انگریز نے دیش ہم سے چھینا ہے، ہم سے چھینا ہے۔ ہم سے کہا جاتا ہے اس دیش کی قربانی میں مسلمانوں کا کوئی یوگدان نہیں، کچھ نہیں کیا مسلمانوں نے، سب کچھ ہم نے کیا، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، یہ بات کہاں تک صحیح ہو سکتی ہے؟ اگر ہمارا مال، ہماری دولت، ہمارا کوئی سامان، ہمارا مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ ہمارا کوئی تھیلا یا ہمارا بیگ کوئی چور لے کر کے بھاگ رہا ہے، سب سے پہلے پیچھا کون کرے گا؟ ہم ہی نہ کریں گے یا کوئی اور کرے گا؟ ہم کریں گے۔ وہی حال، وہی بات ہے اس میں۔ یہ دیش مسلمانوں کا تھا، مسلمانوں سے انگریز اس دیش کو چھین رہے تھے۔ سب سے پہلے کون انگریز کے سامنے آئے گا؟
मुसलमान ही तो आएंगे। और आए, इतिहास को छुपाया जा रहा है, इतिहास पर पर्दा डाला जा रहा है, इतिहास को पर्दा के पीछे रखा जा रहा है। लेकिन इतिहास कभी भी मिट नहीं सकता, हकीकत छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। सबसे पहले जब अंग्रेज इस देश को हड़पने लगे, सबसे पहले मैदान पर मुसलमान आए। कहां से? बंगाल की सरजमीन से। नाम सुने होंगे, सिराजुद्दौला, बादशाह सिराजुद्दौला। सबसे पहले अंग्रेजों से टकराने वाला बहादुर बंगाल की सरजमीन से जनाब सिराजुद्दौला थे। जंग कहां हुई थी? पलासी के मैदान में। अंग्रेज कब्जा करना चाहे, हिंदुस्तानियों से उलझने लगे, परेशान करने लगे, सताने लगे। सिराजुद्दौला ने समझा, अरे हमारा देश और हम ही को हड़का रहा है, इन्हें भगाना चाहिए। पलासी के मैदान में अपनी फोर्स लेकर के जनाब सिराजुद्दौला साहब अंग्रेजों के सामने आए। अंग्रेजी फोर्स भी आ गई और हिंदुस्तानी फोर्स यानी मुसलमानों की फोर्स भी आ गई। लड़ाई चालू। मगर अफसोस, एक सड़ा हुआ नाम सुने होंगे, एक बदबूदार नाम सुने होंगे, मीर जाफर। मीर जाफर याद होगा बच्चों? मीर जाफर ये सिराजुद्दौला का मंत्री था। और बताऊं, सिराजुद्दौला का फूफा था, सिराजुद्दौला का फूफा था, सिराजुद्दौला का मंत्री था। अंग्रेज का शिकारी कुत्ता बन गया, अंग्रेजों के हाथ पे बिक गया। और इस कमबख्त ने, इस चाटुकार ने, इस बदतमीज इंसान ने, जमीर फरोश, वतन फरोश, दोगला इंसान ने सिराजुद्दौला की कमजोरी बता दी अंग्रेजों को। लड़ाई हुई, बिका हुआ वजीर की वजह से सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। वो सिराजुद्दौला जो शान शौकत के साथ मुर्शिदाबाद की जमीन पे चल रहा था, उसे हाथी पर, उसकी लाश को उसे मारने के बाद उसकी लाश को हाथी पर फिराया गया। यानी सिराजुद्दौला की हार हो गई, बंगाल अंग्रेजों को मिल गया। खुशी के क्या कहानी, क्या कहने। अंग्रेज खुश हुए और कहा, वाह बंगाल मिल गया, मौज उनकी कड़ी हो गई, बंगाल मिल गया। सबसे पहले वतन के लिए, देश के लिए अंग्रेजों से लड़ने वाले, अंग्रेजों से टकराने वाले कौन? मुसलमान। नाम क्या? सिराजुद्दौला। किस मैदान में? पलासी के मैदान में। तो फिर ये कहना कि मुसलमानों का वतन की आजादी में कोई कुर्बानी नहीं, ये झूठ है, झूठ है। कितना भी छुपाओ, छुपा नहीं सकते। चलो आगे। और फिर अंग्रेजों की मौज कड़ी हो जाती है, हिंदुस्तान को ललचाई हुई निगाहों से देखने लगता है, समझता है अब तो हम बंगाल पा चुके हैं, दिल्ली पर भी कब्जा करेंगे, पूरे देश पर हम राज करेंगे, हिंदुस्तान हमारा होगा। लेकिन अभी भी वतन की मिट्टी में बहादुर मौजूद थे। वो थे मैसूर की सरजमीन में जनाब टीपू सुल्तान शहीद। टीपू सुल्तान शहीद बड़े बहादुर, बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत तजर्बाकार, बहुत ही टैलेंटेड, ब्रिलियंट, दिमागी इंसान। इनके तजर्बे क्या कहने, इनका धाक अंग्रेजों पर बैठा हुआ था। अंग्रेजी औरतें कहा करती थी अपने बच्चों से, बेटा
सो जा, खामोश हो जा, वरना टीपू सुल्तान आ जाएगा, टीपू सुल्तान आ जाएगा। यानी अपने रोते हुए बच्चों को अंग्रेजी औरतें टीपू सुल्तान के नाम से डराया करती थी। हमारी औरतें क्या करती हैं? बाघ आएगा, शेर आएगा, कुत्ता आएगा, कहते हैं ना। अंग्रेजी औरतें टीपू सुल्तान के नाम से अपने बच्चों को खामोश किया करती थी। टीपू सुल्तान से फिर अंग्रेजों की लड़ाई का टाइम आता है, लेकिन अफसोस की बात यह है टीपू सुल्तान के वजीर भी अंग्रेजों के हाथ बिक जाते हैं। अंग्रेज टीपू सुल्तान के वजीरों को खरीद लेते हैं। दुख की बात है, अफसोस की बात है, कैसे कैसे ये नालायक वजीर थे जो अंग्रेजों के हाथ बिक रहे थे। मीर कासिम को अंग्रेजों ने खरीदा, मीर सादिक को अंग्रेजों ने खरीद लिया। वजीर बिक गए और भी दूसरे वजीरों को उन्होंने खरीद लिया। और होता क्या है, वजीरों ने सब कुछ बता दिया, ऐसे ऐसे हमला करेंगे ना, आपकी जीत हो जाएगी, टीपू सुल्तान हार जाएगा, आपकी जीत हो जाएगी। और अफसोस की बात यह है, अंग्रेज कमांडर जनरल हारिस 4 मई 1799 को अचानक टीपू सुल्तान पर हमला करता है। अचानक हमला करता है। बताइए, अचानक हमला किसको पता? जब अचानक हमला किया जाता है तो इंसान कितना भी बहादुर हो वो हार का सामना कर ही लेता है। तो अचानक हमला हो रहा है टीपू सुल्तान पर। इसके साथ साथ दूसरे अफसोस की बात यह है, टीपू सुल्तान के वजीर उनके साथ बिके हुए आगे आगे, अंग्रेजों से आगे आगे बिके हुए वजीर घूम रहे थे और किला के बारे में बता रहे थे, इधर से हमला कीजिए, इधर से हमला कीजिए। हमला हुआ, जबरदस्त हमला हुआ, और उस हमले में टीपू सुल्तान ने भी बहुत काम किया, बहुत से अंग्रेजों को ढेर कर दिया, मगर वजीर सब उनके साथ होगा क्या? आखिर टीपू सुल्तान की हार हो जाती है, अंग्रेज जीत हासिल कर लेते हैं और अंग्रेजी कमांडर टीपू सुल्तान की लाश के पास आकर बोलता है, वाह, आज से हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान आज से हमारा है। उनकी जीत हो जाती है। लेकिन पॉइंट की बात क्या है? पहले नंबर पे 22 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों से लड़ने वाले और वतन की खातिर शहीद होने वाले मुसलमान सिराजुद्दौला थे। 4 मई 1799 को अंग्रेजों से टकराने वाले बहादुर जनाब टीपू सुल्तान थे, जो मुसलमान थे, दोनों मुसलमान थे। सबसे पहले अंग्रेजों से लड़ने वाले मुसलमान, किसके लिए? वतन के लिए, वतन की खातिर। तो फिर ये कहना कि मुसलमानों का देश की आजादी में कोई हिस्सा नहीं, सफेद झूठ है, सफेद झूठ है। ये आदत लोगों ने डाल ली है। फिर थोड़ा आगे चलिए, उसके बाद अंग्रेजों को देश से साफ करने के लिए उलमाए किराम, मौलानाओं की जमात निकलती है, जिसे वहाबी तहरीक कहते हैं। अरे इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए अंग्रेजों के शर से, अंग्रेजों की बुराई से मौलानाओं की जमात निकलती है, जिस जमात के सरदार सैयद अहमद शहीद रहमहुल्लाह थे, मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह थे। वहाबी तहरीक, अंग्रेजी में वहाबी मूवमेंट कहा जाता है। अंग्रेजों की नींद इन्होंने खराब कर दी थी, इनके होश उड़ा दिए थे। ये दावत तबलीग का भी काम करते थे और अंग्रेजों के खिलाफ साजिश और प्लान भी बनाया करते थे। चुपके चुपके इन मौलानाओं ने पूरे हिंदुस्तान में अपना जाल बिछा दिया था। अंग्रेज परेशान थे कि इनका अड्डा कहां है, कहां से ये जो है अपनी तहरीक चलाते हैं, आंदोलन चलाते हैं। इस वजह से इन उलमाए किराम को ये जालिम अंग्रेज जब पकड़ते थे बहुत सख्त सजा दिया करते थे। कैसी कैसी सजाएं दिया करते थे?
بدن پہ سوئی چبھایا کرتے تھے، سوئی بدن میں سوئی ڈالتے تھے، چبھویا کرتے تھے، چمٹے سے ناخن اتار لیا کرتے تھے۔ یہ تو کچھ برداشت کرنے کی بات ہے، اس سے حد اور سنگین سزا یہ تھی مولاناؤں کو الٹے لٹکا دیتے تھے اور نیچے سے آگ لگا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! ہمارے علماء کرام نے اس دیش کی آزادی کے لیے ایسی خطرناک سزائیں برداشت کی۔ اب 1857 آتا ہے، اب تک صرف علماء کرام مسلمان دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے دشمنوں سے۔ اب 1857 آتا ہے، اس 1857 میں ہندو اور مسلم، جی صرف ہندو اور مسلم، دوسرے نہیں، سکھ نہیں، ابھی تک سکھ یہ سمجھ نہیں پائے تھے کہ ہمیں دیش کی طرف سے لڑنا چاہیے یا نہیں۔ اس وجہ سے پورا پنجاب اور ہندوستان کے سارے سکھ انگریزوں کے ساتھ تھے۔ بعد میں یہ ہندوستان کے ہندو مسلمانوں کے ساتھ آئے، بعد میں 1857 کے بعد، لیکن ابھی تک وہ انگریزوں کے ساتھ مل کر کے ہندوستانیوں سے لڑ رہے تھے۔ تو 1857 عیسوی میں خطرناک جنگ ہوتی ہے۔ اے بیٹا صاحب، بابو صاحب، ارے ٹوپی والے بابو صاحب، خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو۔ 1857 عیسوی میں ہندو مسلم کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں دیش میں، یہ انگریز اپنی دادا گری کر رہے ہیں۔ لیکن اب ایک مزے کی بات یہ ہے، اس زمانے کے ہندوؤں کو مسلم راجاؤں سے بڑی محبت تھی۔ اس زمانے کے ہندوؤں کو مسلم راجاؤں سے بڑی محبت تھی۔ جیسے لکھنؤ کے ہندوؤں کو لکھنؤ کے نواب جناب واجد علی شاہ سے بڑی محبت تھی۔ لکھنؤ کے لوگ چاہتے تھے کہ لکھنؤ کے تخت پر، لکھنؤ کی گدی پر نواب واجد علی شاہ ہی رہے۔ اسی طرح سے دیش کے ہندو یہ چاہتے تھے دلی کے تخت پر، دلی کی گدی پر بہادر شاہ ظفر ہی رہے اور دیش پر راج کرے۔ اب ایک سوال ہے، آج ہندو خطرے میں ہے، سنے ہوں گے آپ لوگ، آج ہندو خطرے میں ہے۔ دیش پر راج کون کر رہے ہیں؟ جناب نریندر مودی صاحب، وہ تو ہندو ہے بھائی۔ یوگی صاحب کی بھی چلتی بہت زیادہ ہے، امت شاہ کی بھی چلتی بہت زیادہ ہے، بڑی بڑی کرسیوں پر ہندو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہندو خطرے میں ہے۔ مگر جب مسلمان اونچی اونچی گدی پر بیٹھے ہوئے تھے، کبھی بھی نہیں سنا گیا کہ دیش کے ہندو خطرے میں تھے۔ انگریز جب حکومت کرنے لگے دیش پر، دیش کے ہندو چاہتے تھے مسلم راج کرے دیش پر، نہیں تو تمام اتہاس کی کتابیں پڑھتے چلے جائیں، اور خاص طور پر میاں محمد شفیع کی کتاب 1857 پہلی جنگ آزادی واقعات حقائق پڑھتے چلے جائیں، آپ کو معلوم ہوگا انگریزوں کا جب راج آیا، یعنی 1857 میں انگریز ہی حکومت کر رہے تھے دیش میں، بہادر شاہ ظفر کی نہیں چلتی تھی۔ تو واجد علی، نواب واجد علی شاہ ہندو مسلم سب کو ایک نظر سے دیکھتے تھے۔ جس طرح مسلمانوں کی عزت کرتے تھے، اسی طرح ہندوؤں کی بھی عزت کرتے تھے۔ اس لیے ہندو لوگ بڑے خوش تھے، اگرچہ بادشاہ بہت عیاش تھا، چلیے عیاشی جانے دیجئے، لیکن یہ جو ہے سینا کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، مسلم کے ساتھ ایک طرح کا برتاؤ کرتے تھے۔ اس لیے فوجی لوگ بڑے خوش تھے اور یہ فوجی کو بڑھا رہے تھے۔ انگریزوں نے دیکھا، اچھا یہ فوجیوں کی سنکھیا بڑھا رہے ہیں، اسے ایرسٹ کر رہے ہیں، اور بھی دوسرے بہانے سے ایرسٹ کر کے، گرفتار کر کے کلکتہ میں بند کر دیا۔ کیا کہنے، لکھنؤ کے ہندو مسلم پاگل ہو گئے، ہندو لوگ اور زیادہ پاگل ہو گئے، ہندو سپاہی اور زیادہ آپے سے باہر آ گئے۔ اچھا ہمارے نواب کو انگریز کرسی سے اتار کر کے کلکتہ میں بند کریں گے، ان سے دو ہاتھ کرنا ہے،
ان کی کمر توڑنی ہے، انگریزوں کو باہر کرنا ہے۔ یہ انگریز نواب کو ہٹا کر نواب کی گدی پر ایک انگریز کو بٹھائے تھے، یعنی لکھنؤ کے تخت پر ایک انگریز کو بٹھائے تھے جس کا نام تھا سر ہنری لارنس۔ لکھنؤ کے لوگوں نے پسند نہیں کیا، ہندو مسلم اکٹھا ہوئے، سر ہنری لارنس کی فوج سے لکھنؤ میں ایک جگہ ہے یہ چنہاٹ کے میدان میں انگریزی فورس سے لڑائی ہوئی ہندو مسلم کی، اور ہندو مسلم نے انگریزوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بھاگے انگریز لوگ اور ریجیڈنسی پارک میں جا کر کے چھپے۔ ہار گئے انگریز۔ لکھنؤ میں لڑے تھے کون؟ ہندو مسلم، صرف ہندو اور مسلم، ریجیڈنسی پارک میں چھپے۔ اس کے بعد سر ہنری لارنس کو برخاست کر دیا ان لوگوں نے، نہیں مانیں گے انگریز کو، نہیں مانیں گے، انگریز کی سرداری ہم لوگ قبول نہیں کریں گے۔ تو بادشاہ واجد علی شاہ کا چھوٹا سا بچہ تھا، ان کو کرسی پر بٹھائے، لکھنؤ کی گدی پر بٹھائے، اور ان کی بیوی بیگم حضرت محل کو ان کی نگرانی کے لیے سربراہ بنا دیے۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ ہندو مسلم کو نوابوں سے بڑی محبت تھی، چین تھا ان کے دل میں، سکون تھا، اس لیے کہ مسلمان جو ہوتے ہیں گندی نظر نہیں رکھتے ہیں پبلک پر، سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ چلیے تھوڑا سا آگے اور بڑھتے ہیں۔ ایک مثال اور، انگریز لوگ دندنانے لگے تھے، دادا گیری کرنے لگے تھے، اسی دوران اور ہندوستان کے ہندو مسلم کے اندر کیا کہتے ہیں یہ سوال اٹھنے لگا تھا، انگریزوں کو بھگاؤ، انگریزوں کو بھگاؤ، اور مسلمان تو پہلے ہی سے جاگے ہوئے تھے، اسی خواب میں تھے ہندو مسلم دیش کے کہ انگریزوں کو بھگایا جائے۔ اسی دوران میرٹھ کی فوجی چھاونی میں ایک بندوق آتی ہے، اینفیلڈ رائفل، جس میں یہ عجیب و غریب رائفل تھی، یہ عجیب و غریب بندوق تھی جو ہندو مسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، ان کے مذہب کے خلاف تیاری کی گئی تھی۔ بندوق اس طرح سے تھی کہ بندوق کے اندر جو گولی ڈالی جاتی، گولی ڈالنے کے لیے جو ڈھکن بنایا گیا تھا سور کی چربی اور گائے کی چربی سے بنایا گیا تھا، اور ڈھکن کھولا جاتا تھا منہ سے۔ یہ آرڈر تھا کہ ڈھکن منہ سے کھولنا پڑے گا، اور ڈھکن سور اور گائے کی چربی سے بنایا گیا تھا۔ فوجی کون تھے؟ ہندو مسلم، اور عیسائی لوگ بھی تھے، تو اس کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں تھی، لیکن ہندو مسلم کو یہ بڑی تکلیف پہنچا رہی تھی بات کہ منہ سے کھولیں گے اور ڈھکن ہے سور اور گائے کی چربی کا۔ ہندو مسلم فوجی نے کہا یہ بندوق ہم لوگ استعمال نہیں کریں گے۔ مسلمانوں نے کہا ہم اس لیے استعمال نہیں کریں گے کہ سور ہم لوگوں میں حرام ہے، اور ہندوؤں نے کہا گائے تو ہماری ماتا ہے، ہم اس کی چربی پر کیسے منہ لگا سکتے ہیں، نہیں لگائیں گے۔ انگریزوں نے مجبور کیا نہیں استعمال کرنا پڑے گا، تو 85 جوان نے، ہندو مسلم جوان نے انکار کر دیا کہ نہیں کریں گے، اور سائیڈ میں ہو گئے۔ انگریز لوگ غصہ آئے، ہتکڑیاں لگا دی، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی، اور گھسیٹتے ہوئے انہیں جیل میں بند کر دیا، میرٹھ کی جیل میں بند کر دیا، اس لیے کہ میرٹھ کی فوجی چھاونی کی بات تھی۔ جب یہ ہندو مسلم جوان بڑی بے عزتی کے ساتھ لے جائے جا رہے تھے جیل کی طرف، ہندو مسلم جوانوں نے ہندوستان کے دوسرے ہندو مسلم فوجی کی طرف دیکھا اور کہا بے شرمو، عورتوں کے پاجامے پہن کر بیٹھ جاؤ۔ ہماری اس طرح کہنے کا مطلب ہماری بے عزتی تم اس طرح دیکھ رہے ہو۔ یہ بات ان فوجیوں پر، دیش کے ان ہندو مسلم سپاہیوں پر بجلی کی طرح گری، تڑپ اٹھے، باپ رے باپ رے، ہمارے بھائیوں کو انگریز اس طرح سے گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں، پریشان ہو گئے۔ یہ 9 مئی 1857 کی بات تھی۔
अगले दिन 10 मई 1857 ईस्वी को सुबह के वक्त दूसरे हिंदू मुस्लिम फौजी जो गिरफ्तार नहीं किए गए थे, उन्होंने अंग्रेजों पर हमला कर दिया। सुबह का टाइम था, जेल को तोड़ करके अपने साथियों को जेल से निकाल लिए। उसके बाद जो शैतान किस्म के अंग्रेज थे उन पर हमला कर दिए और तलवारों से सबको मौत के घाट उतार दिए। कौन थे? हिंदू मुस्लिम। बात कब की है? 10 मई 1857 ईस्वी को ये हिंदू मुस्लिम फौजी फिर उसके बाद पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली पहुंचने के बाद बादशाह बहादुर शाह जफर से मुलाकात किए। ये नाम के बादशाह रह गए थे। आप लोग बताइए, नहीं मैं 5-10 मिनट पे खत्म कर दूंगा, 10 मिनट के अंदर कुछ पॉइंटली बात कहने के बाद। बहादुर शाह जफर मुसलमान और ये पहुंचने वाले सिपाही हिंदू मुस्लिम। बहादुर शाह जफर से कह रहे हैं, आप बादशाह बन करके रहिए, हम आपकी निगरानी में देश पर काबिज अंग्रेजों को निकालेंगे, आप सिर्फ हमारे सरपस्त बन करके रह जाइए। बादशाह मुसलमान है और जो गुजारिश कर रहे हैं वो हिंदू है। उस जमाने के हिंदुओं को इत्मीनान था मुस्लिम बादशाहों से, इसलिए कि उस जमाने के हिंदू खतरे में नहीं थे। उन्हें पता था कि हम मुसलमानों की निगरानी में महफूज रहेंगे। आज हिंदू बादशाह होने के बावजूद भी हिंदू खतरे में रह जाते हैं। बादशाह ने कहा, अरे बाबा साहब, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी उम्र 82 साल हो चुकी है, क्या हम कर सकते हैं? कहा, आप सिर्फ पकड़े रहिए, सिर्फ निगरानी कीजिए। और उन्होंने इनकी गुजारिश मान ली। मुख्तसर बात यह है, बादशाह भी तैयार हो गए, समझ में आ गई बात। बादशाह भी गांव-गांव जाकर के, मोहल्ले-मोहल्ले में जाकर के अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को जगाना शुरू किया। दूर दराज राब्ता किया गया कि अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत जंग होनी चाहिए। लोग दिल्ली पहुंच गए, जंग शुरू हो गई। लेकिन 60,000 तो फौज थे बादशाह के पास। बादशाह की फौज का जो कमांडर था उनका खुद बेटा था, मिर्जा मुगल, तजर्बाकार नहीं था। फिर भी 3 महीने तक जंग होती रही। लास्ट में खतरनाक जंग हुई। अंग्रेजों का जो कमांडर था वो जनरल निकलसन था, जो बड़ा ही तजर्बाकार था। खूनरेज जंग होने के बाद आखिर जनरल निकलसन तो मारा तो गया, यानी जख्मी हुआ, उसके कुछ दिन के बाद वो मारा गया। उसके बाद मटकाफ नामी एक बदमाश अंग्रेज कमांडर आया। हडसन भी मदद कर रहा था, ये भी कमांडर था। और बादशाह की हार हो जाती है, अंग्रेजों का दिल्ली पर कब्जा हो जाता है, जिसमें मुसलमानों को खूब पीसा गया। एक बात याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर की फौज में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम थे। अंग्रेज की फौज में कौन थे? 3-3.5 हजार अंग्रेज थे, समझ रहे? लेकिन देश के गद्दार ढेरों थे। पूरा पंजाब, हिंदुस्तान के सिख अंग्रेज के साथ, नेपाल के फौजी भी अंग्रेज के साथ थे। बताइए, देश के गद्दार अंग्रेजों का साथ देकर के देश के बहादुरों को गाजर मूली की तरह काटते हैं। 8 दिन तक मुसलमानों को दिल्ली में काटा गया। इस वजह से कि बाहर के जो लोग आए थे बहादुर शाह जफर की फौज में, जब अंग्रेजों का कब्जा हो गया, सब चले गए, तो ठेकरा फोड़ दिया मुसलमानों पर, और मुसलमानों को बड़ी बेदर्दी के साथ काटा गया। शॉर्टकट में मैं अपनी बात को समेटना चाहता हूं। 1857 ईस्वी में पूरे भारत में जंग हो रही थी। जब ये जंग दिल्ली में अंग्रेज जीत गए, बड़े बड़े सरदार डायरेक्ट लखनऊ पहुंचे। वहां डायरेक्ट बेगम हजरत महल, एक औरत जो पूरे लखनऊ को संभाल रखी थी, इनकी फौज में हिंदू मुस्लिम थे। ये अंग्रेज पहुंचे, 60,000 का लश्कर था अंग्रेजों के साथ। बेगम हजरत की फौज उससे बहुत कम थी, बहुत कम। जंग होती है, बेगम हजरत महल की हार हो जाती है।
इसी तरह से और भी कई जगह यानी पूरे भारत में जंग हो रही थी, अंग्रेजों ने हर जगह जा जा करके हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम फौजियों को हरा दिया सिखों की मदद से, और इसी तरह से क्या कहते हैं नेपाली फौज की मदद से, देश के गद्दारों की वजह से अंग्रेजों ने जो जीता है, हिंदुस्तान को हासिल किया है, लड़ने के मुकाबले में यानी हिंदुस्तानियों को खरीद खरीद करके जीता है और हिंदुस्तान के लोगों की गद्दारी की वजह से जीता है। दो चार बातें और बता करके मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूं। चूंकि ये बात जो रिकॉर्ड हो रही है ये नेट में जाने वाली है। देश को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम को मिलजुल करके रहना चाहिए। जिस तरह से देश को हिंदू मुस्लिम ने मिल करके आजाद किया है, उसी तरह से अगर हम भी हिंदू मुस्लिम बन करके रहेंगे तो फिर इंशाअल्लाह गंदे किस्म के लोगों की राजनीति चल नहीं सकती। दो मिसाल हिंदू मुस्लिम की, डॉक्टर सैफुद्दीन साहब किचलू ये मुसलमान है, डॉक्टर सत्यपाल यानी 1857 ईस्वी के बाद डॉक्टर सत्यपाल ये हिंदू और डॉक्टर सैफुद्दीन साहब किचलू ये मुसलमान। डॉक्टर सैफुद्दीन साहब किचलू ने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये मेरा जो दोस्त है सत्यपाल हिंदू है, और सत्यपाल ने कभी भी नहीं सोचा कि सैफुद्दीन साहब किचलू ये मुसलमान हैं। दोनों क्या चाहते थे? दोनों ये चाहते थे देश से अंग्रेज साफ हो जाए, इस वजह से ये दोनों मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़े रखे थे, आंदोलन चला रहे थे। दोनों चाह रहे थे कि ये साफ हो जाए। इनके आंदोलन से, इनकी मेहनत से लोगों को ये जो जगा रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेज परेशान थे। इसलिए अंग्रेज ने एक गंदा कानून चालू किया था। क्या? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक कानून इन्होंने ईजाद किया था जो गंदा सड़ा हुआ कानून था। इस कानून का मतलब क्या था? जिस किसी पर भी शक होगा उसे पकड़कर जेल में डाल देंगे, मुकदमा चलाने की कोई जरूरत नहीं है। सैफुद्दीन साहब किचलू ने इसकी मुखालिफत की, ये गलत कानून है। और ये बाहर के पढ़े लिखे थे, बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर थे, कानून दां थे, कानून के नोक पलक से वाकिफ थे। इस वजह से कहा कि ये गलत है और लोगों को जगाने की कोशिश की। डॉक्टर सत्यपाल ने भी, इन्होंने भी साथ दिया, जो बहुत बड़े आदमी थे, लोगों को बड़ी बड़ी महफिलों में बताया करते थे और अंग्रेजों के खिलाफ उभारा करते थे। अंग्रेजों ने इन दोनों को पकड़कर जेल में डाल दिया। तो एक हिंदू एक मुसलमान, दोनों ने कभी भी नहीं कहा ये हिंदू और ये मुसलमान। इस वजह से आज भी उसी तरह हमें मिलकर रहना चाहिए देश में, देश के भाई होने के नाते। एक मिसाल और, अशफाकुल्लाह खान ये मुसलमान थे, इनके सारे दोस्त हिंदू थे, जिनमें एक था राम प्रसाद बिस्मिल। दोनों ने अंग्रेजों के नाक पर दम कर दिया था। दोनों का मशवरा था क्या? अंग्रेजों से लड़ेंगे, उनके माल से लड़ेंगे, उनके माल को छीन करके उन्हीं के माल से हथियार खरीदेंगे और उन्हीं से लड़ेंगे। और ऐसा किया भी उन्होंने, कई बार उन्होंने इस तरह से छापा भी मारा, मगर दोनों को फांसी दे दी गई। दोनों की दोस्ती बड़ी तगड़ी थी, दोनों का मकसद ये था अंग्रेजों को भगाया जाए देश से, लेकिन दोनों में कभी भी टेंशन नहीं हुआ ये बात लेकर के कि ये हिंदू हम मुसलमान, हम मुसलमान वो हिंदू, हम हिंदू ये मुसलमान, ये नहीं कहा करते थे। तो देश में रहने के नाते हमें अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल का तरीका अपनाना चाहिए। एक आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। हम लोगों के दरमियान एक बात आम है कि इस देश को महात्मा गांधी ने आजाद किया। अल्लाह के बंदो, अभी आप सुनते आ रहे हैं, सुना आपने कि इस देश की आजादी में सबसे पहले मुसलमानों ने भाग लिया, लेकिन आजकल क्या कहा जा रहा है? महात्मा गांधी ने आजाद किया देश को। और कितने लोग ये कह भी रहे हैं कि महात्मा गांधी ने देश को आजाद किया, ये देश महात्मा गांधी का है, इसलिए रुपये में उसकी तस्वीर है, फोटो है। महात्मा गांधी की हम इज्जत करते हैं, हर एक को इज्जत करनी चाहिए। महात्मा गांधी ने देश की आजादी में बड़ी मेहनत की है, लेकिन अकेला उसने देश को आजाद नहीं किया है, अकेला नहीं किया। हिंदू मुस्लिम की मदद से
देश आजाद हुआ, देश आजाद हुआ। सुनिए, महात्मा गांधी कब पैदा हुए? 2 अक्टूबर 1869 को। और उन्होंने आंदोलन कब छेड़ा? 1917-18 से, 1917-18 से, यानी बहुत बाद में, बहुत बाद में। और मुसलमान आंदोलन चलाना शुरू किए कब से? 1757 ईस्वी से पहले से। महात्मा गांधी 1917-18 से, यानी 161-62 साल, 60 साल पहले से मुसलमान आंदोलन चला रहे हैं अंग्रेजों को भगाने के लिए। और फिर महात्मा गांधी जब आंदोलन चला रहे थे, उन्होंने क्या कहा था? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में है, भाई भाई, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। अब सिख लोग भी आ गए थे, बाद में सिख लोग भी आ गए थे। तो उस जमाने के सिखों की ये बात थी। आजकल के सिख लोग ठीक ठाक हैं जो हिंदू मुस्लिम के साथ मिलकर के रहना चाहते हैं। तो इस देश की कुर्बानी के लिए मुसलमानों की लाखों कुर्बानियां हैं। लेकिन एक सवाल पैदा हो सकता है कि मुसलमानों ने देश की आजादी के लिए इतनी कुर्बानियां दी, मगर उनकी मूर्तियां नजर नहीं आ रही है। जहां देखते हैं महात्मा गांधी की मूर्ति, जहां देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति, जहां देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति, जहां देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति, मुसलमानों की मूर्ति कहां? मुसलमान शक में पड़ जाते हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा है? मूर्ति पूजा है? नहीं है। तो फिर मूर्ति कहां से आएगी? ना मूर्ति पूजा करते हैं, ना मूर्ति बनवाते हैं, ना मूर्ति बनवाना पसंद करते हैं, ना मूर्ति के सामने झुकते हैं। इस वजह से देश के मुसलमानों की मूर्तियां नहीं हैं। देश के मुसलमानों ने देश की आजादी के लिए लड़ाई की थी, अंग्रेजों से पंगा लिया था और कुर्बानियां पेश की। उसका बदला उन्हें अल्लाह के यहाँ मिलेगा, मूर्ति बनवाने के लिए नहीं। अगर मूर्ति बनवाना होता तो देश के अक्सर चौराहे मुसलमानों की मूर्तियों से भरे होते, मुसलमानों की मूर्तियों से भरे होते। मैंने शायद अपनी बात को लंबी कर दी है, तो इसके लिए माजरत खा हूं, लेकिन बातें अच्छी थी। जितने भी लोगों ने सुना तो उसके लिए क्या कहते हैं, इन बातों को जहन में रखें। और बात लंबी होते होते एक बात मैं लेकिन और बताना चाहता हूं। एक बात बता करके मैं खत्म कर दूंगा, आप लोग तकलीफ ना करें। अक्सर कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया और हिंदुस्तान हिंदू को दिया गया, इसलिए मुसलमानों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। यह कहा जाता है, हम मुसलमान डर जाते हैं। अल्लाह के बंदो, सोचने की बात है। अगर यही बात होती कि मुसलमानों को पाकिस्तान दिया गया और हिंदुस्तान हिंदुओं को दिया गया, तो फिर यहां मुसलमानों को रहने के लिए कौन दिया? क्यों रहने के लिए दिया गया? फिर संविधान जब लिखा गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के संविधान को लिखे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबरी का हक दिया गया। दूसरी बात यह है कि अगर हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है और पाकिस्तान मुसलमानों के लिए है, तो क्या पाकिस्तान में हिंदू है या नहीं? पाकिस्तान में मंदिर है या नहीं? ऐसी क्या बात है? हिंदुस्तान में भी हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान में भी हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान में भी मस्जिद मंदिर, पाकिस्तान में भी मस्जिद मंदिर। ये कैसे हो गया? और कहा जाता है पाकिस्तान मुसलमानों को, हिंदुस्तान हिंदुओं को, तो वहां भी मस्जिद मंदिर, यहां भी मस्जिद मंदिर, वहां भी मुसलमान हिंदू सिख ईसाई, यहां भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। कौन सी बात सही है? बात यह है, ये पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं है, ये दंगाई लोगों की बात है। ऐसी बात नहीं है। देश जब आजाद हुआ तो ये इजाजत दी गई थी। कभी इस पर लंबी गुफ्तगू करूंगा कि जो चाहे पाकिस्तान जाना चाहे जा सकता है, हिंदुस्तान में अगर जो रहना चाहे तो रह सकता है। मुसलमान पाकिस्तान जाए तो चला जाए, ना जाए तो कोई बात नहीं। जो हिंदू पाकिस्तान में रहना चाहे तो रह सकता है और हिंदुस्तान में रहना चाहे तो रह सकता है। ये परमिशन की बात थी। ये बात जो कही जा रही है हिंदू मुसलमानों को उलझाने के लिए, खौफ ज्यादा करने के लिए, डर दिखाने के लिए, दंगाई किस्म के मीडिया लोग ये कहते हैं, वरना इस तरह की कोई बात नहीं थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हिंदुस्तान को शांति वाला हिंदुस्तान बना, हमारे हिंदुस्तान में शांति का माहौल बना और लोगों को शांति के साथ, हिंदू मुस्लिम को अमन और सुकून के साथ रहने की तौफीक दे।